Hello students, welcome to Europe Education. I am Jitendra Tyagi. So as all of you know, we have started a series in which we are discussing important questions for your GATE Data Science and Artificial Intelligence paper. Okay, so in this series daily we are providing you important questions. So today we are going to discuss questions from the topic probability. Okay, so some of the questions I have taken from the sample paper given by IISc Bengaluru for data science, and some other relevant questions, related questions, which may be very important in your upcoming exam. Okay, GATE paper in data science and artificial intelligence. Okay, so you know, in data science probability is very important topic. So let us discuss questions, and here you will see the question. First of all, while watching this video, what you have to do, you pause the video. Okay, you calculate the solution. Okay, you have to try yourself also, and then you resume and then watch my solution. Okay, so this is the strategy which you have to follow. Okay, that will be more beneficial for your preparation. Okay, so in next sessions I will come with linear algebra also, calculus also, random variable also. Okay, so all chapters which are included in the syllabus in the exam paper of this data science and AI. So all relevant questions and topics will be discussed. Okay, so let us see our first question here. So this is the question from the sample paper taken. You just read and try to solve this problem. Okay, what may be the solution? Okay, so I hope you have tried to solve this question by pausing the video. Now what is the solution of this question? A fair coin is flipped twice. Okay, so when we flip a fair coin twice, what are the possible outcomes? All of you know. Okay, but it is known that at least one tail is observed. Okay, so when something is known to us, some information is known to us, in that case we have to think about the possible outcomes. Okay, we know that we have got at least one tail. Then what can be the possible outcomes? There is at least one tail, that we know. So if we know that there is at least one tail, then the sample space will be TT, it can be TT, TH or HT. Okay, so this is the conditional probability actually, in which some already known condition is there, and according to that already known condition we have changed our sample space. Suppose they just say a fair coin is flipped twice. Okay, suppose we say this only, then what is the possible outcomes? So we write HH, HT, TH, TT. There are four possible outcomes, but here some condition is known to us. So by keeping that condition in our mind, we will write the sample space. Okay, so conditional probability में क्या करते हैं कि हम एक known condition होती है, उसके basis पे हम एक नया sample space बनाते हैं. Okay, so this is our new sample space based on the condition given to us. Now we write the event whose probability is to be computed with respect to this new sample space. Okay, अब जो हमारी event है जिसकी probability हमें compute करनी है, उसको हम define करेंगे इस नए sample space के respect में. Okay, so this is our S, and we will write E equal to, so the probability of getting two tails. Okay, we want two tails. So there is only one sample point which will satisfy this condition. So in our event there is only one sample point. Okay, now these three sample points are mutually exclusive, collectively exhaustive. So we can apply the definition of the probability. We can write probability of event E equal to NE upon NS. Okay, so it is equal to 1 upon 3. So B option will be the right answer here. I hope you got this solution. Okay, so now we can move to the next question. So now this is different question which I have formed for you people, important question related to the previous question. Okay, so solve this. ओके, सो लेट मी डिस्कस द सॉल्यूशन नाउ. एक डाइस को हमने थ्रो किया है, ठीक है. सो आप जानते हैं जब हम डाइस को थ्रो करते हैं, ठीक है, तो देर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6, राइट.
अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड एंड फोर्थ आउटकम्स आर 2 and 4 रेस्पेक्टिवली. ओके, सो यहां पे क्या है, एक्चुअली देयर आर 2 इवेंट्स, वी आर हैविंग 2 इवेंट्स. एक इवेंट ए हम लिख सकते हैं ए. व्हाट इज दैट इवेंट? ए इवेंट. सेकंड outcome is 2. It is second outcome is 2. Okay, second outcome is 2. So what is the probability of this event? अगर हम किसी डाइस को थ्रो करते हैं, चाहे हम 4 बार थ्रो करें चाहे 10 बार थ्रो करें. ओके, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड आउटकम इज 2. सो किसी भी नंबर पे आउटकम आने की 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6. ओके, चाहे वो कोई से भी नंबर हो, सेकंड नंबर की बात चल रही ना. तो पहली बार कुछ भी आया हुआ, ठीक है, सेकंड टाइम जब मैं डाइस को थ्रू करूंगा तो किसी भी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही रहती है, राइट. सो 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 1/6. सो इट इज 1/6. ओके, नाउ अनदर इज कि फोर्थ आउटकम क्या है आपकी? फोर्थ आउटकम दैट इज 4. लेट अस कॉल इट एज इवेंट बी. ओके, दैट फोर्थ आउटकम इज 4. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज आल्सो इक्वल टू व्हाट? 1/6. ठीक है, फोर्थ नंबर पे भी अगर हम कहें कि कोई नंबर आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी सबकी 1/6 रहती है, राइट. सो नाउ वी वांट बोथ ए एंड बी टू हैपन. ओके, हम चाहते हैं दोनों कंडीशन ट्रू हो. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ए एंड बी इन दिस ऑर्डर. ओके, हम चाहते हैं ए एंड बी दोनों ट्रू हो इस ऑर्डर में. सो विच रूल विल बी एप्लीकेबल हियर? जब भी हम चाहते हैं कि दो इवेंट हो ए एंड बी एंड बोथ हैपन एंड इन द ऑर्डर ए टू बी, देन वी यूज फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन रूल. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू व्हाट? Probability of A into probability of B because A and B are independent event. देखो सेकंड आउटकम में जो भी रिजल्ट आएगा और फोर्थ आउटकम में जो भी रिजल्ट आएगा वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे. जब फोर्थ आउटकम आएगा तो वो ये नहीं देखेगा कि सेकंड में क्या आया था उससे पहले. ओके, सो ये दोनों इंडिपेंडेंटली आते हैं. ठीक है, सो बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट. सो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी. सो इक्वल टू 1/6 इंटू 1/6 और इक्वल टू 1/36. So this will be the right answer here. So C option is the correct answer. Okay, please note down. Now we can discuss next problem. So let us move to question number 3 now. So just read the question and try to understand it. सो दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम और चैलेंजिंग प्रॉब्लम है. अगर समझना मतलब इजीली समझ में नहीं आता है इस प्रॉब्लम किसी को ये. सो लेट अस डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. यू पीपल प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट. Okay, so now I am going to explain you the solution of this problem. Okay, very very important problem. समझने में थोड़ी दिक्कत होती है. क्या करेंगे इसमें? देखो हमारे पास सबसे पहले ना एक रूल होता है हमारा. ठीक है, एक फॉर्मूला है जो आपको मैं बता देता हूं. क्या फॉर्मूला है वो? सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xk इक्वल टू n. ओके, सपोज ये एक इक्वेशन है और क्वेश्चन है नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस. नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन. ओके, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन. ओके, ऑफ दिस इक्वेशन. सो व्हाट इज द आंसर टू दिस? ये आपको याद रखना है फॉर्मूला n प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1. नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन इज n प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1. ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 5. राइट, सपोज अब मैं आपसे पूछता हूं कि एक इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में. ये लीनियर इक्वेशन हम कह सकते हैं k वेरिएबल्स में. राइट, सो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, मतलब जो सॉल्यूशन है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जीरो हो सकता है या कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है. ठीक है ना. सो नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस हमें फाइंड आउट करने हैं. अगर मैं डायरेक्टली अप्रोच लगाता हूं, सपोज वैल्यूज पुट करके,
ठीक है, तो x को मैं क्या ले सकता हूं 0, सो y इक्वल टू आई नीड टू टेक 5, ठीक है। अगर मैं x को 1 लेता हूं, x इक्वल टू 1, सो y इक्वल टू आई नीड टू टेक 4, ओके। x इक्वल टू सपोज मैं लेता हूं इसमें 2, सो y इक्वल टू 3, ओके। x इक्वल टू आई टेक 3, देन y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, then y is equal to 1, and x equal to 5, then y is equal to 0, okay. So total solutions कितने बन रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, there are 6 नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। इसमें सॉल्यूशन में जीरो आ सकता है, ठीक है। नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जीरो हो या पॉजिटिव हो, राइट। सो 6 आंसर्स हमारे आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये फॉर्मूला अगर लगाना है तो इस फॉर्मूले के हिसाब से ये n जो है दैट इज 5 हेयर, ओके। सो 5 प्लस और k कितना है 2 वेरिएबल्स है तो 2 माइनस 1 c 2 माइनस 1, ओके। k माइनस 1 का मतलब 2 माइनस 1 इक्वल टू 5 प्लस 2 7 माइनस 1 6c1 इक्वल टू 6, ओके। बिकॉज nc1 इक्वल टू क्या होता है n होता है, राइट। सो हमारे पास 6 सॉल्यूशन आए इस फॉर्मूले के हिसाब से, ओके। ये कंसेप्ट हमारा हम यूज कर सकते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस डिफरेंट इसके होते हैं। सो अभी इसको आप नोट कर सकते हैं फॉर्मूले को। अब देखो इसका एक एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन होता है सपोज कि अगर मैं लिखता हूं यहां पे एक प्रॉब्लम कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, ओके, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, ओके, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग n identical objects, n identical objects, okay, n identical objects among k people, k people। अगर k डिफरेंट पीपल है हमारे पास, ठीक है, उनको हमें n आइडेंटिकल आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। जहां पे किसी आइटम किसी पीपल को हो सकता है, किसी पर्सन को हम कुछ भी ना दें, एक भी ऑब्जेक्ट ना दें, ये भी पॉसिबिलिटी है, जीरो दे मतलब, ठीक है। सो इसका आंसर होता है n प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1, ओके। ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, बिकॉज ये जो आपका प्रॉब्लम है ये इसी से रिलेटेड है। देखो हमारे पास 5 आइडेंटिकल क्वाइंस है, सपोज बिल्कुल एक जैसे क्वाइन है 5, और इनको दो लोगों को देना है, ठीक है। एक्स और वाई दो पीपल है माने, इनको देना है 5 क्वाइंस। तो हम कैसे दे सकते हैं, इसको हमने एक भी क्वाइन नहीं दिया, इसको पांचों दे दिए। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, वी हैव गिवन 1 कॉइन टू दिस पर्सन एंड 4 कॉइन्स टू दिस पर्सन। We have given 2 coins to this person, 3 coins to this person, 3 to this, 2 to this, 4 to this, 1 to this, 5 to this, 0 to this. So ये हमारा जो आंसर है इसी का एक्सप्लेनेशन है ये, राइट। सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमंग के पीपल। और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एन आइडेंटिकल बॉल्स हैं और उनको के डिफरेंट बॉक्सेस में पुट करना है, ओके, वी हैव एन आइडेंटिकल बॉल्स which you have to put them in k different boxes. In how many ways we can do it? n plus k minus 1 c k minus 1, okay, this is the answer. इसको कई बार हम beggars method करके भी बोलते हैं, right? So I hope you understood this point. Now come back to the problem. So इस प्रॉब्लम में क्या है, देखो, we given n indistinguishable particles, मतलब indistinguishable का मतलब क्या होता है कि जिनमें कोई डिफरेंस नहीं कर सकते, मतलब हम बोल सकते हैं आइडेंटिकल। सो n आइडेंटिकल पार्टिकल्स को हमें, ठीक है, हमारे पास है n आइडेंटिकल पार्टिकल्स एंड m डिस्टिंग्विशेबल बॉक्सेस, मतलब m डिफरेंट बॉक्स हैं, बॉक्सेस जो है उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो m डिफरेंट बॉक्सेस हैं, उनमें हमें पार्टिकल रखना है। वी प्लेस वन एट ए रैंडम ईच पार्टिकल इन वन ऑफ द बॉक्सेस। इन पार्टिकल्स को हमें डालना है बॉक्स में, किसी भी बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें डाला, इसमें डाला, इसमें डाला, हर एक पार्टिकल को, मतलब सारे डालने हैं बॉक्स के अंदर। अब किसी में ज्यादा हो सकते हैं, किसी में कम हो सकते हैं। सो इन हाउ मेनी वेज वी कैन डू इट, कितने तरीके से ये काम कर सकते हैं, कितने ऐसे तरीके होंगे। तो ये तो वही फॉर्मूला चलेगा ना जो मैंने अभी बताया है, n प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1, ओके, विच इज इक्वल टू n प्लस के माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई के माइनस 1 फैक्टोरियल, एंड दिस माइनस दिस करेंगे तो n फैक्टोरियल, ओके, n फैक्टोरियल, n प्लस के माइनस 1 फैक्टोरियल। और यहां पे k क्या है, अब ये k जो मैंने ले लिया फॉर्मूले से ले लिया अगले वाले से, मुझे लेकिन यहां पे आना है ना, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूं एक बार, क्योंकि मुझे तो इसकी वैल्यूज के हिसाब से चलना है जो यहां पे ली गई हैं। सो क्या लिखना है इसको, इसकी जगह
यहां पे हमारे पास k की जगह पे कौन है, m है, ठीक है ना, और n ये है, ठीक है, टोटल। सो n प्लस m माइनस 1 c, k माइनस 1 का मतलब m माइनस 1, ओके। ये टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे विच इज इक्वल टू n प्लस m माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m माइनस 1 फैक्टोरियल, एंड देन दिस माइनस दिस करेंगे, सो m से m कैंसिल, तो बचेगा n फैक्टोरियल, ओके। सो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द पार्टिकल्स इन द डिफरेंट बॉक्सेस, ओके। नाउ इवेंट क्या है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इन n प्री सेलेक्टेड बॉक्सेस, मतलब इनमें से n हमने पहले से डिसाइड किए हुए हैं बॉक्स, चूज नहीं करने हमें, हमें पता है उन बॉक्स में जिनकी बात चल रही है वो फिक्स्ड है, ठीक है। सो n बॉक्स के अंदर, ठीक है, हर एक बॉक्स में एक पार्टिकल आएगा, ये मान लिया वो n बॉक्सेस ये हैं जो प्री डिफाइंड है, ठीक है, इनमें सब में एक आएगा, तो जो बाकी बचेंगे उसमें आएंगे सारे, ठीक है ना, उस बाकी में सारे, राइट। तो अब यहां पे ये कितने तरीके से कर सकते हैं, ये तो एक ही तरीके से कर सकते हैं कि सब में 1 डाल दिया हमने, ये वाला n प्री सेलेक्टेड बॉक्सेस 1 एंड ओनली 1 पार्टिकल विल बी फाउंड। सो इसके तरीके कितने होंगे, एक ही तरीका होगा इसका करने का, ओके। दिस कैन बी डन इन 1 वे। सो अगर इसको एक तरीके से कर सकते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 1 अपॉन दिस, ओके। सो 1 अपॉन दिस करेंगे n प्लस m माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये ऊपर चला जाएगा तो n फैक्टोरियल और m माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट। सो सी बी आंसर यहां पे मैच कर जाएगा आपका, ओके। Now read this question and try to solve it. Okay, so I hope you have tried to solve this problem. अब देखो जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको ये दिया है, 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग 5 पीपल, ओके, जिसमें फर्स्ट पर्सन गेट्स एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन गेट्स एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट, ओके, इन दिस मैनर। सपोज जो 5 पीपल हैं उनको जो ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं वो x1 मिल रहे हैं, एक को x2, ओके, एक को x3, एक को x4 और x5, इक्वल टू टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं, 50, ओके। ये इक्वेशन है हमारे पास, 5 पीपल हैं, एक को हमने x1 ऑब्जेक्ट दे दिया आइडेंटिकल, एक को x2, एक को x3, x4, x5, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि जो फर्स्ट पर्सन है ना, ये गेट्स एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट, तो यहां पे कंडीशन दे दी कि x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ओके, और सेकंड पर्सन जो x2 है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बिकॉज उसको कम से कम 2 मिले हैं, सेकंड पर्सन गेट्स एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट। सो x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और x5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है। इस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था n प्लस k माइनस 1 c k माइनस 1, वो तब चलता है जब वेरिएबल्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, एटलीस्ट 0, मतलब 0 से स्टार्ट हो, लेकिन ये तो 1 2 3 4 से स्टार्ट हो रहे हैं। सो हियर वी विल यूज चेंज ऑफ वेरिएबल, हम वेरिएबल को थोड़ा चेंज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अब देखो ये x1 की जगह अगर मैं y1 ले लेता हूं, सपोज इक्वल टू x1 माइनस 1, ठीक है, अगर मैंने एक वेरिएबल लिया y1 दैट इज x1 माइनस 1, ओके। सो यहां पे क्या होगा कि x1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। सो यहां से x1 इक्वल टू कितना आएगा, y1 प्लस 1, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। सो y1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो y1 वेरिएबल फिर 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो y1 में चेंज कर रहा हूं मैं x1 को इस रूल से, ठीक है, और y1 अब 0 से बड़ा होगा।
सो यहां पे x1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट x1 इक्वल टू y1 प्लस 1. ओके, सो दिस इज y1 प्लस 1 प्लस सिमिलरली x2 को क्या लिख सकते हैं हम, y2 प्लस 2. ओके, y2 प्लस 2 प्लस y3 प्लस 3 प्लस y4 प्लस 4 और प्लस y5 प्लस 5. ठीक है, और ये टोटल कितना करना है, 50 करना है. अब ये जो y1 y2 y3 y4 y5 है ना, these all are greater than or equal to 0. okay, so we can write the equation as y1 plus y2 plus y3 plus y4 plus y5 equal to 50 माइनस ये कितना हुआ, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना हुआ, 15. सो 50 माइनस 15 का मतलब 30 कितना, 5 4 9 3 12 14 15. ठीक है, सो 50 में से 15 गया, कितना बचा, 35. ओके, ये आएगा आपका 35. अब इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो कितने सॉल्यूशंस होंगे, अब तो वही फॉर्मूला चलेगा ना आपका, क्योंकि ये जो वेरिएबल्स हैं y1 y2 y3 y4 y5 ये सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं. ओके, सो यहां पे हम अपना फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या, 35 मतलब n प्लस k, k कितना है 5 माइनस 1 सी के माइनस 1, सो इक्वल टू 39c4. ओके, सो आंसर विल बी 39c4. सो ये एक मेथड है जिसके ऊपर सैंपल पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ था, सो अकॉर्डिंगली मैंने एक और क्वेश्चन आपके लिए लिया है इंपॉर्टेंट. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस. बी इज द राइट आंसर हियर. सो नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. So read the question and write your answer in the notebook you have. Okay, so let us discuss the solution of this problem. You know, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड, कंसेप्चुअल बेस्ड आपको एग्जाम में मिल सकते हैं. तो कंसेप्ट को आपको इग्नोर नहीं करना है, राइट. सो ए और बी दो इवेंट हैं जिसमें बी एक सबसेट है ए का, राइट. अब देखो इसको एक एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं. सपोज आई टेक वन, दिस इज वन सैंपल स्पेस और यूनिवर्सल सेट. इसमें एक सेट है कोई ए, ये ए है सपोज. नाउ बी इसके अंदर है, बी सबसेट ऑफ ए ना, बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, सो बी इज इनसाइड. ओके, नाउ सपोज आई राइट द एलिमेंट्स, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. these are the elements, distribution of the element in this region. okay, now इन्होंने कहा कि पी ए अंडर बी इज 0. देखो अगर ये बोल रहे हैं कि बी हो रहा है, यार बी अगर होगा मतलब बी अगर ट्रू है, सपोज बी इज हैपनिंग, तो बी अगर ट्रू है तो बी में जो भी सैंपल पॉइंट है 3 4 वो तो ए के भी पार्ट है ना, तो डेफिनेटली ए तो होगा ना. फिर उस केस में अगर बी ट्रू है, ठीक है, अगर बी ट्रू है तो उस केस में तो ए डेफिनेटली होगा, फिर ट्रू होगा, तो फिर तो 1 आना चाहिए ना. इन दैट केस पी ए इंटरसेक्ट ए अपॉन बी, दिस कंडीशन, ये इक्वल टू तो 1 ही आएगा. तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया और ये भी गलत हो गया तुरंत. ठीक, अब दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर मैं इसी एग्जाम्पल से यहां पे वेरीफाई करना चाहता हूं दोनों को, देखो ये मैं यहीं पे वेरीफाई कर सकता हूं. पी बी, अगर मैं आपसे पूछता हूं पी बी, व्हाट इज पी बी? पी बी का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी. ओके, यहां पे ये बी है, दिस इज बी, सेट बी, जो ए के इनसाइड है, बिकॉज बी इज द सबसेट ऑफ ए. सो पी बी मीन्स एन बी अपॉन एन एस. पी बी मतलब क्या होता है, एन बी अपॉन एन एस इक्वल टू. अब बी के अंदर कितने एलिमेंट है, यहां पे 3 और 4, 2 एलिमेंट्स, सो 2 अपॉन, और टोटल वी आर हैविंग 10 एलिमेंट्स, सो 2 अपॉन 10 और 1 अपॉन 5. दिस इज पी बी. नाउ अनदर इज पी बी अंडर ए, पी बी अंडर ए. ओके, सो पी बी अंडर ए का मतलब क्या है कि अगर ए ट्रू हो रहा है तो बी के होने की प्रोबेबिलिटी, तो जब ए ट्रू है, ये नोन है हमें, ठीक है ना, ए अगर ट्रू है तो इसका मतलब सैंपल स्पेस में 2 3 4 5 6 यही पॉइंट आएंगे ना जो ए के अंदर है. ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट आएंगे ए के अंदर, 2 3 4 5 6, तो 5 पॉइंट यहां पे देख रहे हैं, तो 5. और उस केस में बी के अंदर कितने एलिमेंट है, 2, सो 2 अपॉन 5. सो इन दोनों में कौन ग्रेटर आपको दिख रहा है, पी बी अपॉन ए, और पी बी में कौन बड़ा आ रहा है, पी बी अपॉन ए.
So PB upon A is always greater than or equal to PB. Okay, this is the true statement. This is the wrong statement. So A is the right answer to this question. Okay, please remember this. ये आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार ध्यान से देख लीजिए. Okay, so now we can move to next question. क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए और फिर इसका आंसर निकालने का प्रयास कीजिए. Okay, so let us discuss the solution. A class contains 60% students who are incapable of changing their opinions about anything. देखो किसी मुद्दे पे वोटिंग होती है तो क्लास के अंदर ऐसे स्टूडेंट 60% है जो अपना ओपिनियन चेंज नहीं करते कुछ भी हो. ओके, सो आज उन्होंने वोट किया है, अगर कहीं पे जो उनका आज ओपिनियन है, मतलब कोई भी स्टूडेंट है सपोज जो अपना ओपिनियन चेंज नहीं करता है, राइट. सो ऐसे स्टूडेंट को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 60/100. ये वो स्टूडेंट है जो अपना ओपिनियन चेंज नहीं करता, इसने कोई वोट किया होगा, ठीक है ना, वोट डाला. और दूसरा 40/100, ये क्या है प्रोबेबिलिटी उन स्टूडेंट की कि जो अपना ओपिनियन चेंज कर सकते हैं, ठीक है. ये वो है 60% जो अपना ओपिनियन चेंज नहीं करते, ये वो है जो अपना ओपिनियन चेंज कर सकते हैं. इन्होंने वोट किया सपोज, ठीक है, वोट दिया पार्टी पी को, ठीक है, पार्टी पी को, पी के मतलब इन्होंने पी के फेवर में वोट दिया है, ठीक है, पी में. अब इन्होंने भी कुछ वोट दिया होगा, ठीक है ना, सपोज पी को दिया या क्यू को दिया, जिसको भी दिया, ठीक है. सपोज इन्होंने पी को वोट दिया, राइट. नाउ फर्दर पॉसिबिलिटी क्या है कि सेकेंड टाइम अगर उसी इशू पे वोटिंग होती है तो ये अपना ओपिनियन चेंज नहीं करते, तो किसी और को वोट देने की प्रोबेबिलिटी इनकी क्या रहेगी? 0 रहेगी. मान ले क्यू को वोट देने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 0. इशू क्यू के फेवर में बोलने की प्रोबेबिलिटी, और पी के फेवर में बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 1. ओके, पहले अगर इन्होंने पी के फेवर में बात की तो फिर से पी के फेवर में बात करने की प्रोबेबिलिटी 1, राइट. अब जो दूसरे वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पी के फेवर में बात की होगी 40/100 सपोज. अब वो क्या है, वो अपना ओपिनियन चेंज कर सकते हैं. प्रोबेबिलिटी 0.3 बिटवीन सब्सिक्वेंट वोट्स ऑन द सेम इशू. सेम इशू पे फिर से वोट अगर करते हैं तो अपना ओपिनियन चेंज करेंगे वो, मतलब पहले पी को वोट दिया तो क्यू को देंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है. और ओपिनियन चेंज नहीं करेंगे, सेम रहेंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0.7. ओके, ये ट्री डायग्राम हम बना सकते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट रैंडमली चूजन वोटेड ट्वाइस इन द सेम वोट. अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी स्टूडेंट रैंडमली चूज किया जाता है, वो दोनों बार सेम वोट देता है, इसकी प्रोबेबिलिटी. तो देखो दोनों बार सेम का होता है, पहले पी उसके बाद पी, यही सेम. या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है, राइट, पी 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 दिस वन, एंड अनदर इज पी पी, ये वाली. दोनों में से कोई भी सिचुएशन बन सकती है ना, दिस और दिस. इन दोनों सिचुएशन में हम देख सकते हैं कि वो सेम वोट दे रहा है, ट्वाइस सेम इशू पे वोट दे रहा है, राइट. सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 60/100 इंटू 1, 60/100 इंटू 1, और प्लस, और यहां पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 40/100, 40/100 और मल्टीप्लाइड बाई 0.7. सो इक्वल टू 60 प्लस 28/100 इक्वल टू 88/100. So equal to 0.88. So this is the answer here. Okay,
Please note down. Now come to next problem. In a bolt factory, machine ABC manufacturers respectively. एक बार रीड करो क्वेश्चन को, ठीक है. All these questions are very very important for your upcoming examination, gate paper in data science and artificial intelligence. So सभी को ध्यान से समझना है कंसेप्ट को. देखो एक बोल्ट फैक्ट्री मशीन ABC जो है वो बोल्ट प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना. सो कोई भी रैंडमली चूजन बोल्ट है वो मशीन A ने प्रोड्यूस किया होगा या B ने किया होगा या C ने. ओके, देयर आर 3 पॉसिबिलिटी. सो बोल्ट हैज बीन प्रोड्यूस बाय मशीन A. इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 20%. अगर ये प्रोड्यूस कर रही है सो 20/100. The bolt has been produced by machine B. Probability will be 30/100. The bolt has been produced by machine C. So probability will be 50/100. Okay. Now अब इनमें से 3, 4 and 2% डिफेक्टिव बोल्ट आते हैं. सो A ने बोल्ट प्रोड्यूस किया, ठीक है, वो डिफेक्टिव होगा या गुड होगा. B ने प्रोड्यूस किया तो डिफेक्टिव होगा या गुड होगा. C ने प्रोड्यूस किया तो डिफेक्टिव या गुड. ये पॉसिबिलिटी है, राइट. अब A ने प्रोड्यूस किया, सो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है. सो जो A प्रोड्यूस करती है उसमें से 3% क्या होता है, डिफेक्टिव होते हैं, 3%. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट विल बी 3/100. ठीक है, A ने डिफेक्टिव बोल्ट प्रोड्यूस किया तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/100 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, राइट. और B 4%, सो 4/100. और C ने प्रोड्यूस किया डिफेक्टिव बोल्ट 2/100. ओके, ये हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी. नाउ इफ द बोल्ट ड्रॉन इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव. अब मान लें हमने कोई बोल्ट मिला, रैंडमली हमने एक बोल्ट चूज कर लिया, ठीक है, बहुत सारे बोल्ट हमारे सामने हैं, वी हैव चूजन वन बोल्ट रैंडमली, दैट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव. तो डिफेक्टिव है तो यार किसका है, कौन सी कंपनी का है ये नहीं पता, ठीक है, मिक्स हो गए सारे बोल्ट. सो हम प्रोबेबिलिटी से कंप्यूट करेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय सी. सो दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी व्हिच वी हैव टू कंप्यूट कि बोल्ट सी ने प्रोड्यूस किया है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है अंडर द कंडीशन कि बोल्ट हैज बीन फाउंड टू बी डिफेक्टिव. ठीक है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है. सो हियर वी यूज बेस थ्योरम. यू नो बेस थ्योरम कब यूज होता है, जब इनमें से कोई इवेंट हमें पता होती है और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है ना, बैक जाते हैं जब, देन वी यूज बेस थ्योरम. सो दिस इज इक्वल टू पी सी इंटरसेक्शन डी डिवाइडेड बाई पी डी, विच इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी अपॉन सी अपॉन पी डी. ओके, अब पी डी क्या है, डिफेक्टिव बोल्ट होने की प्रोबेबिलिटी. अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता रूल ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली चूजन बोल्ट इज डिफेक्टिव, तो उसके केस में हम पी डी कंप्यूट करते. ठीक है, अब ये क्या करेंगे, इक्वल टू, अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे यहीं पे मैं बता देता हूं. देखो पी सी का मतलब तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई दिस वन, और इनटू पी डी अपॉन सी. पी डी अपॉन सी का मतलब डिफेक्टिव है, प्रोड्यूस बाय सी, तो दिस इनटू दिस. ओके, so I am writing here 50/100 multiplied by 2/100 upon now PD का मतलब क्या, डिफेक्टिव बोल्ट की प्रोबेबिलिटी. तो डिफेक्टिव ए का भी हो सकता है, बी का हो सकता है या सी का हो सकता है. सो दिस प्लस दिस प्लस दिस. ओके, सो 20/100 दिस वन इंटू डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 3/100 multiplied by 3/100 plus 30/100 into 4/100 और plus 50/100 into 2/100 इक्वल टू. अब ये जो भी फाइनल आंसर आएगा वो आप लोग कंप्यूट कर सकते हो. ओके, now question number 8 we can see here.
A and B are two events such that PA equal to this, PB equal to this, PA union B equal to this. Which of the following is or are correct options? Okay. So let us discuss this problem. A and B are two events, ठीक है. अब देखो यहाँ पे P A union B अगर गिवन है और P और PB गिवन है, सो एडिशन रूल हम जानते हैं क्या होता है. PA union B इक्वल टू PA प्लस PB और माइनस PA इंटरसेक्शन B. Okay, this is called addition rule, fundamental addition rule. So 5/6, okay, 5/6 equal to 2/3 plus 1/2 और माइनस PA इंटरसेक्शन B. ये फॉर्मूला बनेगा अगर, तो यहां से आप PA इंटरसेक्शन B कंप्यूट कर सकते हो इजीली. PA इंटरसेक्शन B को कितना हो जाएगा 2/3 प्लस 1/2 माइनस 5/6. एलसीएम आ जाएगा 6. सो 4 प्लस 3 माइनस 5. So 7 minus 2/5 मतलब 1/3. So probability of A intersection B is 1/3. अब देखो पहले दो ऑप्शन है A और B इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है. सो कैसे चेक करते हैं हम इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस. A इंटरसेक्शन B कंप्यूट करते हैं और PA इंटू PB कंप्यूट करते हैं, राइट. सो अगर दोनों सेम है तो ये इंडिपेंडेंट है, डिफरेंट है तो डिपेंडेंट है, राइट. सो PA इंटरसेक्शन B तो हमारा 1/3 आया है, अभी हमने कंप्यूट किया है, राइट. नाउ PA इंटू PB, सो PA 2/3 है और इनटू, और PB कितना है 1/2 है. सो ये दोनों तो बराबर है, ठीक है, इक्वल है. इट मींस A एंड B आर इंडिपेंडेंट. सो इसमें एक ऑप्शन तो ये करेक्ट हो गया, ठीक है. ये MSQ टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं ना, एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं. सो दिस इज MSQ. अब हमें बाकी दूसरा ऑप्शन हमारा गलत हो गया ये वाला, ठीक है, ये गलत है. नाउ P ओनली A अकर्स निकालना है, ठीक है. P ओनली A अकर्स और नीदर A नोर B अकर. सो अगर हम नीदर ए नोर बी निकालना चाहते हैं तो डायरेक्टली इसका कंप्लीमेंट होगा, ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नोर बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ देम अकर इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम अकर. ये फॉर्मूला होता है. सो 1 माइनस दिस करेंगे तो 1/6 आएगा, तो ये भी करेक्ट है आपका. डी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ P ओनली A अकर्स, केवल A होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. सो P ओनली A का मतलब A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. ये आपका सिंबल होता है किसका, ओनली A अकर्स का. और इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, PA इंटू PB बार, बिकॉज ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट आ चुके हैं ना A और B. सो A B अगर इंडिपेंडेंट है तो A एंड B बार आर आल्सो इंडिपेंडेंट. ये A और B बार दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएंगे, तो यहां पे प्रोडक्ट कर सकते हैं सीधा इनका. ओके, सो इक्वल टू, अब PA कितना है आपका 2/3 इंटू, और PB कंप्लीमेंट कितना आएगा 1/2. तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये भी 1/3 आ रहा है. सो दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन. सो ACD करेक्ट है और B रॉन्ग है यहां पे. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. So this is from permutation and combination topic. Okay, read the question and try to find out the answer. Okay, so if all the letters of the word practical are permuted among themselves and different words are formed, ठीक है. तो अगर हम सारे वर्ड्स को लेटर्स को आपस में परम्यूट करते हैं, सो हाउ मेनी टोटल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, ये तो हम लिख सकते हैं ना प्रैक्टिकल में. अब देखो P है, इसमें R है और A, ये दो जगह पे A है, A. ओके, देन वी हैव C, दो जगह पे C है. देन वी हैव T, I और L. ओके, ये हमारे पास लेटर्स हैं. सो इनमें कुछ आइडेंटिकल हैं जैसे A और C. सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे, टोटल वर्ड्स. सो टोटल वर्ड्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ये दोनों आइडेंटिकल हैं तो 2 फैक्टोरियल, और ये दोनों आइडेंटिकल हैं तो 2 फैक्टोरियल. दिस इज योर टोटल नंबर ऑफ वेज.
Okay. Now what is the probability that in this word both C together, both A are together? ठीक है, मतलब ए ए आपस में एक साथ आएंगे, जहां भी आएंगे एक साथ रहेंगे, और सी सी एक साथ रहेंगे। तो दोनों को बॉक्स में बंद कर लेते हैं, एक बॉक्स ये रहेगा, एक बॉक्स ये रहेगा, और बाकी सारे लेटर्स कहीं भी जा सकते हैं, पी आर, ओके, टी आई एल। सो ये हमें अरेंज करने हैं अब ये वाले, ठीक है। सो इसको एज ए सिंगल ट्रीट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। सो वी हैव 7 ऑब्जेक्ट जिनको हमें क्या करना है, परम्यूट करना है। सो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कुछ नहीं है, क्योंकि सारे अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सारे सारे कुछ भी डिवाइड में नहीं आएगा। अब लेकिन ये दोनों आपस में तो परम्यूट कर ही सकते हैं, लेकिन आइडेंटिकल है तो परम्यूटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा। 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये आपस में परम्यूट कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ओनली 7 फैक्टोरियल विल बी द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। ओके, अब हम फाइनल आंसर निकालेंगे तो क्या होगा, फाइनल आंसर इक्वल टू फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। सो फेवरेबल हमारे पास है 7 फैक्टोरियल अपॉन टोटल में ये हमारे पास था 9 फैक्टोरियल अपॉन दिस। सो इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 7, 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4। 4 को ऊपर न्यूमरेटर में लिख सकते हैं, यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा। सो इक्वल टू 1 अपॉन 18। Okay, so D will be the right answer here. Now come to next question number 10. So ये आपका जो आंसर कैलकुलेट करने के बाद फिल करने के लिए आता है, उस कैटेगरी का क्वेश्चन है। So in a school 80% people are students and 20% are teachers. Okay, so देखो कोई भी रैंडमली हमें कॉल करेगा तो वो क्या हो सकता है, या तो स्टूडेंट हो सकता है या फिर टीचर हो सकता है, ठीक है। 80% पीपल जो है वो क्या है, स्टूडेंट्स हैं, 20% क्या है, टीचर्स हैं। तो उसके स्टूडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 80/100, और उसके टीचर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 20/100। अब जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनमें अगर हमने चेक किया तो स्टूडेंट के अंदर 60% ऑफ द स्टूडेंट जो फीमेल है, तो फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी, फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, स्टूडेंट है तो उसके फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 60% स्टूडेंट फीमेल है ना, तो ये होगा 60/100। और मेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 40/100। और जो टीचर्स हैं उसमें, ठीक है, उसमें फीमेल और मेल किस परसेंटेज में है, 80% ऑफ द टीचर्स आर फीमेल। जितने भी टीचर्स हैं उसमें 80% फीमेल है। सो किसी टीचर के फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 80/100, ठीक है, और मेल होने की 20/100। सो दिस विल बी द ट्री डायग्राम इन दिस प्रॉब्लम। नाउ क्वेश्चन क्या है कि वन ऑफ द फीमेल फ्रॉम दैट स्कूल कॉल्ड मी यस्टरडे। ओके, आपको किसी ने कॉल किया, फीमेल ने, उस स्कूल से। अब आपको ये नहीं पता कि यार वो टीचर है कि स्टूडेंट है, ठीक है, ये नहीं पता सपोज, बस आपको पता है कि उस स्कूल से है ये। सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो टीचर है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टीचर अंडर द कंडीशन, आपको क्या पता है कि वो एक फीमेल है, आवाज से आपने पहचान लिया सपोज, ठीक है। सो पी टीचर अपॉन फीमेल, सो इक्वल टू बेस थ्योरम लगेगा यहां पे भी, क्योंकि वो फीमेल है ये तो पता है, लेकिन वो टीचर है कि स्टूडेंट है ये नहीं पता, राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टीचर अंडर फीमेल, सो पी टीचर इंटरसेक्शन फीमेल अपॉन पी फीमेल, ओके, इक्वल टू, अब टीचर इंटरसेक्शन एफ का मतलब टीचर और फीमेल, ओके। सो 20/100 और इनटू में 80/100, राइट, 80/100 डिवाइडेड बाई, अब प्रोबेबिलिटी उसके फीमेल होने की, किसी भी रैंडमली कोई पर्सन हमें मिलता है उस स्कूल से, वो फीमेल होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, यहां से आएगी। अब 80/100 और इनटू 60/100 और प्लस प्लस, वो स्टूडेंट भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है। सो 20/100 और इनटू 80/100। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस यू विल गेट द फाइनल आंसर।
Okay, students, so these were 10 really important questions which may be very helpful for your GATE paper in data science and artificial intelligence. And in my upcoming session, I will take questions from linear algebra, random variable, calculus, all these topics. So these questions will be definitely beneficial. Please watch all the lectures and solve the problem. Okay, आपको खुद सोल्व करना है, ऐसा नहीं कि केवल सॉल्यूशन देखना है. First of all, you try to solve yourself, then see the solution. Okay, this is the strategy. So I wish you all the best.